ایک خفیہ پیپر کی ابتدائی صورت میں اپنے معمولی آغاز سے آج اپنی بڑھتی ہوئی عالمی حیثیت تک بٹ کوائن نے انسانی توقعات سے کہیں بڑھ کر کم و بیش ایک تحریک کو جنم دیا ہے۔ یہ پیش رفت ادائیگی کے معاملے میں یقیناً ایک تجارتی انقلاب ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس کی مانگ ہو رہی ہے، وہ ایکسیپٹیبل کرنسی ہو گئی ہے۔ 2012 میں 450 روپے تھی، 2015 میں 42,000 روپے کا ایک بٹ کوائن مل رہا تھا، 2018 میں 12 لاکھ روپے کا ایک بٹ کوائن، اور 2021 میں 80 لاکھ روپے کا ایک بٹ کوائن، اور آج 2 کروڑ اور 78 لاکھ روپے کا ایک بٹ کوائن۔ آنے والے ٹائم میں بٹ کوائن جس کمپنی کے پاس ہوگا، جس ملک کے پاس ہوگا، تو اس کو زیادہ سیف اینڈ سیکور تصور کیا جائے گا۔ بٹ کوائن نے کسی تیسرے فریق کے بغیر لین دین کا ڈی سینٹرلائزڈ ڈیجیٹل نظام فراہم کیا ہے۔ اسے کبھی مستقبل کی کرنسی کے طور پر سراہا بھی گیا اور کبھی افراتفری کے خوف سے اس نسخے کی مذمت بھی کی گئی۔ عالمی تجارت میں اپنی افادیت منوانے کے بعد یہ کرنسی اب جدت اور مالی آزادی کی علامت بن گئی ہے۔ سال 2007 اور 2008 میں شدید عالمی معاشی بحران پیدا ہوئے۔ اس صورتحال کے سبب عالمی منڈی شدید مسائل کا شکار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان حالات میں ایک شخص نے بٹ کوائن ایجاد کر لیا۔ اسے ساتوشی ناکاموتو نامی ایک شخص نے دریافت کیا تھا، لیکن بظاہر اپنی مستقل روپوشی کے سبب ساتوشی ناکاموتو سے متعلق دنیا کی معلومات انتہائی محدود ہیں۔ بٹ کوائن کو کوئی کمپنی نہیں چلا رہی، اس کا کوئی سی ای او نہیں ہے، اس کی کوئی مارکیٹنگ ٹیم اس کے پیچھے نہیں ہے۔ ماضی کے مذکورہ بحران کے سبب بٹ کوائن کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے اوپن سورس کے نفاذ کے ساتھ ہی 2021 میں ایل سیلواڈور نے اسے قانونی ٹینڈر کے طور پر اپنا لیا۔ 22 مئی 2010 کو فلوریڈا میں ایک شخص نے پیزا کے لیے 10,000 بٹ کوائن ادا کیے۔ اس لین دین کو بٹ کوائن کے ساتھ پہلی خریداری سمجھا جا سکتا ہے۔ سیلواڈور وہاں پہ تو بٹ کوائن کو لیگل ٹینڈر قرار دے دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کچھ بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ ہم ایل سیلواڈور کی مثال دیں تو وہاں پہ لیگل ٹینڈر ہے۔ اب امریکہ کی بات کریں تو وہ اس کو اپنے اسٹریٹجک ریزرو میں شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بٹ کوائن نے ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر مالیاتی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ اوپن لیجر اور کرپٹوگرافی ملا کر تیار کی گئی ہے۔ یہ کوائن آپ کے ڈیجیٹل والیٹ میں محفوظ ہو سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے اسٹاک ایکسچینج کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ دونوں کی خصوصیات اور فوائد مختلف ہیں اور ان کا استعمال سرمایہ کار کی ترجیحات اور مالی حکمت عملی پر منحصر ہوتا ہے۔ بٹ کوائن زیادہ تر سرمایہ کاری کے تناظر میں اہم سمجھا جانے لگا ہے۔ کچھ اسکالرز نے اسے معاشی بلبلے کے طور پر بھی بیان کیا ہے۔ بٹ کوائن از دا کنگ آف کرپٹو کرنسیز۔ کمپٹیٹیو کرنسی کے شکل میں سامنے آ گیا ہے، جو اپنی ویلیو سے نیچے اور اوپر دونوں جاتا ہے۔ سب سے طاقتور کرنسی ڈالر کی بات کریں تو اس کے مقابلے میں بھی ایک بٹ کوائن 1 لاکھ ڈالر تک جا چکا ہے، تو اس سے بڑی بٹ کوائن کا متبادل ہونے کی کون سی بات ہوگی؟ البتہ پاکستان میں کوائن پر پابندی ابھی تک قائم ہے، لیکن بہت سے صارف اس کو غیر قانونی طریقے سے ٹریڈ سے تعبیر کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ نہیں ہے نظام، اسٹیٹ بینک نے اب تک اس کو الاؤ نہیں کیا ہوا۔ اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پر تو کئی جگہ پر آپ کوئی چیز لینے جائیں تو وہاں پر لوگ کارڈ کی پیمنٹ نہیں لے رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں صرف کیش میں ہمیں پیمنٹ دیں، تو یہاں پر بٹ کوائن تو آپ اثاثہ نہیں لے سکتے۔ بیکاز آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس نے ابھی تک بٹ کوائن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کرپٹو کرنسی کو اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ اس پر اور بھی بہت سارے کویسچن ریز ہو رہے ہیں۔ پیئر ٹو پیئر بٹ کوائن نیٹ ورک میں بلاک چین ایک اوپن سورس ڈیجیٹل لیجر کہلاتا ہے۔ یہ کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے لین دین کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ یہ کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی کمپیوٹرز کے نیٹ ورک میں تقسیم محفوظ ہوتا ہے۔ یہ کام کرتا ہے لیجر کے بیسس پر، جس میں بہت سارے کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ کوئی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن جو ہے نوٹس کے تھرو اور لیجر کے تھرو سٹور ہو جاتا ہے۔ بلاک چین میں یہ سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ چھوٹی رقم کا سرمایہ کار بھی جو ہے وہ سرمایہ کر سکتا ہے۔
पहले मरहले में एक सारिफ दूसरे सारिफ को बिटकॉइन भेजने के लिए एक ट्रांजैक्शन पैगाम तैयार करता है। उसमें भेजने वाले का पब्लिक एड्रेस, वसूल कुनंदा का पब्लिक एड्रेस, मुंतकिल की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी की रकम और ट्रांजैक्शन की फीस शामिल होती है। दूसरे मरहले में ट्रांजैक्शन की तस्दीक होती है, जिसके लिए ट्रांजैक्शन पैगाम ब्लॉकचेन नेटवर्क पर नशर किया जाता है। नेटवर्क पर मौजूद खुसूसी नोड्स माइनर्स कहलाए जाते हैं। माइनर्स का तस्दीक करना मकसूद होता है। माइनर्स चेक करते हैं कि भेजने वाले के पास काफ़ी फंड्स हैं या नहीं, ट्रांजैक्शन का पैगाम दुरुस्त है या नहीं। तस्दीक शुदा ट्रांजैक्शंस एक मेंबर पूल में शामिल कर दी जाती हैं, जिसे मीम पूल कहा जाता है। ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के अमल को माइनिंग कहते हैं। ये एक किस्म का मैथमेटिकल पजल होता है जिसको हल करने पर माइनर्स को रिवॉर्ड मिलते हैं बिटकॉइन। क्या आपको मालूम है कि 2024 में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी किस मुल्क के हैकर्स ने चुराई? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। एक नई तहकीक के मुताबिक शुमाली कोरिया के हैकर्स ने 2024 में क्रिप्टो करेंसी में 1.34 अरब डॉलर चोरी किए, जो दुनिया भर में चोरी होने वाली कुल रकम की तकरीबन 60% है। जानो और जानते रहो। माइनर्स मीम पूल से ट्रांजैक्शंस मुंतखब करके उसे ब्लॉक बनाने के लिए एक पेचीदा पहेली जैसी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए काफी कंप्यूटेशनल पावर दरकार होती है। हर ब्लॉक में एक मुनफरिद कोड होता है जिसे हैश कहा जाता है, जो उस ब्लॉक को पिछले ब्लॉक से जोड़ देता है। जो माइनर सबसे पहले ये पहेली हल करता है, वो नेटवर्क पर नए ब्लॉक का ऐलान करता है। नेटवर्क पर मौजूद दूसरे नोड्स नए ब्लॉक्स और उसकी ट्रांजैक्शंस की तस्दीक करते हैं। ब्लॉक के हैश और पिछले ब्लॉक से उसके ताल्लुक की तस्दीक होती है। तस्दीक शुदा नोड्स ब्लॉकचेन में शामिल कर दिए जाते हैं। यूं नए ब्लॉक में शामिल ट्रांजैक्शंस की तस्दीक हो जाती है। तमाम ट्रांजैक्शंस को माइनर वेरीफाई करते हैं और फिर उसको पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड भी कर देते हैं, और फिर यही माइनर्स जो हैं इस नेटवर्क की सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। लोगों को जब पेमेंट करनी होती है तो आपके पास बिटकॉइन के अंदर जो बैलेंस होता है, वो आप बैलेंस जो है वो आईटी टेक्निक के ज़रिए, जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, बिटकॉइन का जो ज़ोर है, उसकी जो बुनियादी ताकत है, वो आप समझिए कि एक स्टोर ऑफ वैल्यू की है, कि आपने अपनी सेविंग्स का ख्याल कैसे रखना है कि वो कम नहीं होंगी, कि वो बढ़ती चली जाएं। हाल ही में बिटकॉइन की कीमत ने पहली बार $1,00,000 की हद उबूर की, तो ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स में जश्न की लहर दौड़ गई, बल्कि आलमी मईशत के माहिरीन भी हैरान रह गए, क्योंकि इससे बहुत से मुआशी दरवाजे खुल गए। मुस्तकबिल की ट्रेडिंग में आलमी बैंकर्स इसके बारे में मुस्बत सोच रखने लगे हैं, जिसकी वजह से कई आलमी इदारे जैसे ICE, CBOT, CME और ETF इस करेंसी में दिलचस्पी लेने लगे हैं। ये वो लम्हा था जिसका क्रिप्टो कम्युनिटी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आजकल के दौर में देखें तो ये 100K को क्रॉस कर चुका है और रेगुलर बेसिस पर इसकी प्राइस में इजाफा हो रहा है, जो कि शो कर रहा है कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं। बिटकॉइन के ऊपर बहुत सारे जगहों पे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मार्केटिंग का एंगल होता है, और इस मार्केटिंग के एंगल पे बिटकॉइन जो है वो मेरा ख्याल एक परफेक्ट करेंसी के तौर पे सामने आता है। क्रिप्टो करेंसी में बेशुमार किस्म के कॉइन्स शामिल होते हैं, जैसे डॉज कॉइन, इथीरियम और लाइट कॉइन, लेकिन बिटकॉइन अपनी शोहरत और तिजारत की वजह से सबसे नुमाया है। क्रिप्टो करेंसी किसी मरकजी बैंक या हुकूमत के तहत काम नहीं करती, और ये एक गैर मरकजियत वाले निज़ाम में काम करती है। बिटकॉइन का नेटवर्क डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए काम करता है, यानी इसकी कोई सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी भी नहीं है और इसकी कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी नहीं है।
बिट कॉइन के लिए वॉलेट मखसूस होता है। वॉलेट में इस करेंसी को महफूज तरीके से ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। ये वॉलेट डिजिटल चोरी और नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बिट कॉइन को अक्सर डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सरमायाकारी के लिहाज से सोने की तरह कीमती समझा जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें बिटकॉइन को एक एसेट के तौर पर लेना पड़ेगा। जिस तरह सारे एसेट्स होते हैं, गोल्ड है, आपकी ज़मीनें हैं, उसी तरह बिटकॉइन एक एसेट है। अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन को एज अ डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। डायरेक्ट मुकाबला जो है वो गोल्ड के साथ है या बाकी असासों के साथ है, उसका डायरेक्ट मुकाबला करेंसीज के साथ नहीं। माहिरीन का ख्याल है कि डिजिटल करेंसीज अब मुस्तकबिल की मईशत का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। दुनिया के कई ममालिक ने न सिर्फ इसको अपनाया, बल्कि अमेरिका और यूएई समेत कई ममालिक ने इस पर कानून साजी भी शुरू कर दी है। बिटकॉइन को कई मशहूर कंपनीज और शख्सियात ने बतौर सरमायाकारी और जरिया अपनाया है। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी ने न सिर्फ बिटकॉइन में सरमायाकारी की, बल्कि कुछ वक्त के लिए उसे अदायगी के तरीके के तौर पर भी कबूल किया। इसी तरह माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ माइकल सेलर बिटकॉइन के बड़े हामी हैं और अपनी कंपनी के जरिए अरबों डॉलर्स की करेंसी खरीद चुके हैं। अगर लाख रुपए जमा करा रहे हैं तो लाख रुपए के बिटकॉइन लेंगे, आप उस पर अपनी हेजिंग भी कर सकते हैं, आप फ्यूचर बुक भी कर सकते हैं, आप रिवर्स साइड भी बुक कर सकते हैं। इसका ये मैकेनिज्म चलता है। इसको बाकी करेंसियों के साथ साथ इसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जिस तरह हमें रियल एस्टेट में देखने को मिल रहा है। और अपार्ट फ्राम दैट बहुत सारी बड़ी कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क और जैक डोर्सी जैसे मशहूर अफराद भी बिटकॉइन के हामी हैं। इनके अलावा कई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स और ई कॉमर्स वेबसाइट्स बिटकॉइन को बतौर तरीक़ा अदायगी कबूल करके आलमी सतह पर तिजारत को आसान बना रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें गैर मुस्तहकम भी हो सकती हैं, लिहाजा इनमें सरमायाकारी करते वक्त एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें पेशेंस जो है बड़ी लाजमी चीज़ है कि आप यू विल हैव टू वेट एंड सी। और ये रातों रात अगर अमीर बनने की आपकी ख्वाहिश है तो फिर मैं समझता हूँ कि आप किसी भी इस किस्म के बिज़नेस में, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जब बैठेंगे तो फिर खुदा न खास्ता नुकसान का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि जी अगर मैं इलेक्शन जीता हूँ तो मैं अमेरिका के फेडरल रिजर्व में अपनी बिटकॉइन रखूँगा। पाकिस्तान में अगर बिटकॉइन को फ़ाल तौर पर कानूनी हैसियत दी जाती है तो इसके मुस्बत और मनफी दोनों असरात हो सकते हैं। स्टेट बैंक मैं समझता हूँ कि आगे जाके इसका कोई ना कोई हल ज़रूर तलाश करेगा कि ताकि इसकी ट्रेडिंग को रेगुलेट भी किया जा सके, मुल्क को इसका टैक्स भी मिले और जो हवाला हुंडी के ज़रिए लोगों का पैसे भेजने का अमल है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। पाकिस्तान के हवाले से तकरीबन 4 से 5% आबादी, लेकिन वो भी आप समझिए कि कोई 1 करोड़ पाकिस्तानी बन जाते हैं जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से डील कर रहे हैं। रिस्की एसेट मार्केट है, इसमें जहां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं कि रातों रात लोगों को लगता है कि बहुत प्रॉफिट्स आ गए हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी है कि रातों रात लोगों को नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। मुस्बत पहलू ये है कि ये सरमायाकारी के नए मौक़े फराहम कर सकता है, बैनुल अक़वामी तरसीलात ज़र को आसान और कम लागत बना सकता है और डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने में फ़ाल किरदार अदा कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये तरीक़ा मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी समेत दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में बढ़ावे का सबब भी बन सकता है। यानी हुकूमत पाकिस्तान को मुनासिब रेगुलेशंस और निगरानी के ज़रिए इसके इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करना होगा ताकि अवामी एतमाद बहाल हो और मईशत को फ़ायदा पहुँच सके। हम चाहते हैं कि लीगल हो जाए। काफ़ी लोग कर तो रहे हैं इस पे, लेकिन मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हुकूमत हर चीज़ पे आजकल टैक्स लगाती है। वेरिफिकेशन करके इसकी टाइम लेके इसको एक्सेप्ट कर लें। अगर ये क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगलाइज हो गई तो ये बैंकिंग सिस्टम सारा ख़त्म हो जाएगा। इस नई पेशरफ्त के ज़रिए कौम का नफ़ा या नुकसान मुकम्मल तौर पर हुकूमत की नीयत और अहलियत पर मुनहसर है।